Good morning, boys and girls. This is the day 2 class. Yesterday it was day 1, D1 कह सकते हैं आप, and today is day 2 class for the same coordinate geometry. You remember yesterday I had told that much about slope of the line. Slope of the line, I shall simply in a very short way I shall revive, but don't take that I will go much in details. Slope of the line means the tangent of the angle of a line, what it makes with x-axis and particularly in positive direction. Yesterday I had shown many examples, 2-3 examples especially, and that way I had reminded you many times. I had told you that please do remember we should not be very much focusing our ideas about the angle theta. We should think about it, whether the theta is the angle made by x-axis and whether it is in positive direction or not. So it should be positive direction with x-axis and the angle should be made from x-axis with x-axis, not with y-axis, not any other line, not any perpendicular line. So that way we had explained yesterday. Now I am going to talk about the slope intercept form. Today's topic we start for slope intercept form. Slope intercept form, I tell you that this figure will be always working. This is now itself it has got no work, simply some lines are written. But when I will come with that, I will show you. But before that, what I try to make you understand here on the board, that is slope intercept form. Look here. Slope intercept form. Sorry. This is y-axis. Why it is actually, I am not very much in practice. I am very much in practice of writing on the board, blackboard or like this. Anyway, I am taking it. This is y-axis, this is x-axis, and a line which is here making C intercept, and any variable point here P is x, y. Obviously you will say, sir, this PM will be y. Of course, and this will be x. This will be x. And the line is making angle theta with x-axis in positive direction. So this is y and this is x. This is origin. So what do I want, my children? That we wanted to find the equation of the line. This one AB you can say, here A and here B. And this line makes angle theta with x-axis in positive direction. I am very much particular to say positive direction. And one point on the line AB, that is P, having variable point, that is xy. So here PM is y
and say it is C and here it is D. So you can say CD is X and PM is Y. Okay, what do I, मैं क्या करना चाह रहा हूं? I want to find the equation of a line AB which makes angle theta with x-axis in positive direction. This is positive direction, and the length of intercept of that line on y-axis is C. तो जरा देख ले हम लोग, this PC will be y minus C, C small, and this is X. Then what is the position in triangle PC and B? PC and M. PCM. P, this is P, this is no, I should go to PDC. PDC. P, D and C. Now, who can say here this angle? Who can say about this angle, what I have marked here? Yes, very correct. This will be theta. You are right. Then what can be tan theta in triangle PDC? Tan theta, what will be? Of course, you will say that it will be perpendicular upon base, that is PC upon DC. What is PC? This was Y, this is C, so this is C, right? So this will be Y minus C. This is Y minus C, and this upon DC. DC is X. Then what is tan theta? You know, of any line, what do we term? What do we say? That is, yes, that is M. That is M, right? Slope. And this is equal to Y minus C upon X. Can we write Mx equal to Y minus C? Can we say the next line? Yes, the next line is Y minus C equal to Mx. This way, or we can say Y equal to Mx plus C. This is the line. This is the equation of the line. Equation of the line, which line? Yes, let me know that equation of the line, which line? That is, yes, I would like to know that Y minus C upon X is the equation of the which line? It is the equation of the line which is having intercept C on y-axis, कट C on y-axis, एक टुकड़ा C बनाती है वो लाइन y-axis पर, और x-axis से वो थीटा एंगल. And therefore, I just take a point P having co-variable point. आप कहेंगे सर क्या जरूरत थी P का x y लेना? बाबा ये P ही तो मूव करेगा ना. लाइन एक्चुअली द पाथ जिस पर एक वेरिएबल पॉइंट मूव करता है, जिस पर एक वेरिएबल पॉइंट मूव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि y माइनस, देखिए
इसलिए मैं कह रहा हूं वहां पर कि पीडीसी एक ट्रायंगल लिया। अब ये नहीं ज़्यादा बताऊंगा। दिस इज y माइनस सी हियर टू हियर, दिस इज x हियर टू हियर, द टोटल पीएम इज c एंड देयरफॉर आई टेक इन ट्रायंगल पीडीसी that is tan theta equal to perpendicular upon base, that is y minus c upon x, or cross multiply y minus c equal to tan x tan theta, that is y minus c equal to tan theta को हमने m ले लिया, y minus c equal to mx, and therefore y minus c if mx, y equal to mx plus c। बिल्कुल, अब इसको हमको याद कर लेना है कि y minus c equal to mx, y minus c equal to mx, that is, आप नीचे रखिए, देखिए आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो होल्ड, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो हियर ओके सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, हियर सम टेक्निकल प्रॉब्लम वाज देयर। एनीवे, तो y माइनस सी अपॉन y माइनस सी इक्वल टू mx या y इक्वल टू mx प्लस सी हमें याद रखना है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल थीटा विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड C इज द इंटरसेप्ट, कट, टुकड़ा है जो y से वो लाइन काट रही है, एंड सो y इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज c? व्हाट इज c? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, राइट। व्हाट इज m? स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? द एंगल मेड बाय दैट लाइन विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस c। हमें बराबर याद रखना होगा कि C इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, अभी आप देखेंगे तो हो रहा है कि नहीं। एक मिनट रखिए, ऑफ करो। Yes, now the second form of the straight line, second form, that is second form of the line, second form, intercept form, intercept form, intercept form. What do I want to speak about the intercept form? I want to find the equation of a line which makes intercept A on x axis, A on x axis and B on y axis. Here the line AB, it is AB के बारे में क्या कहा गया कि AB is the line which makes intercept A on x axis and B on y axis. So this length is A and this length is B. हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन? बिना किसी वेरिएबल पॉइंट के तो इक्वेशन आएगा नहीं। एक बार मैं बार बार समझा रहा हूं आप लोगों को कि ये वेरिएबल पॉइंट बेटा ये है कि जैसे यहां है, यह एक पॉइंट है, लेकिन सेटअप पॉइंट्स विल बी अ लाइन ना, इसलिए ऐसे 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 घूमेगा। तो कहीं भी हमने ले लिया एक पी पॉइंट, ये मान करके कि ये आवारा सा पॉइंट है, ये घूमने वाला पॉइंट है। ये अब हम क्या करेंगे, कि यहां से आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर पी एम, हियर आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर एन,
PN, and I have joined by my own O. Right? Now I want that you should feel it here. ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है OAB, the big triangle, it is the join of the two triangles. Which one? I can say that OPB, triangle OPB plus triangle OPA is equal to triangle, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, इक्वल टू ट्रायंगल OAB, है ना, दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल OAB OPB और OPA दोनों ट्रायंगल्स का सम है? Now I ask you, what will be the area of the triangle OPB? What will be the area of the triangle OPB? Yeah, right. Don't raise many of the hands. OPB, what will be the area of the triangle? You can say, sir, you nicely write half BX. क्यों? Half base into its height. What will be the area of the triangle OPA? You can say that is half, that is A into X. And what will be the area of the big triangle OAB? Half, this is A, this is B, half AB. This half is cancelled, you are getting it here. And divide by AB, dividing by AB, we have, that is BX upon AB plus, here by mistake I have written half AY upon AB and equal to 1 dividing by AB. And what it gives? Yes, right, X upon A plus Y upon B equal to 1, the equation of the line. How nicely we got it, na? दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिलाकर के बिग ट्रायंगल के इक्वल कर दिया, दोनों के एरिया लिख दिया, ए बी से डिवाइड कर दिया राइट हैंड से, एंड वी गॉट नाइसली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. एक और अभी मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा, दोबारा करूंगा, लेकिन मैं बोर्ड छोड़ दूंगा. आई विल बी कमिंग देयर. नाउ आई कम टू द थर्ड form. That is called normal. Normal form of the line. Normal form of the line means that it is also called perpendicular form. So I am making it here. मैं जरा कंजूसी से थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि अननेसेसरी हमें जरूरत न पड़े कुछ और इंक हमारा खाने को. हाँ बेटा. Now I want to find the equation of the line AB to which the length of perpendicular origin to that line is P and the perpendicular making angle alpha with x-axis. Which direction? Again positive direction. ये positive direction बड़ा काम की चीज है यार. So I wanted to say कि we want to find the equation of the line this AB. कैसी वो लाइन है, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि to which the length of perpendicular from O to that line is
P, and that perpendicular makes angle alpha. Not the line, please try to understand. वो लाइन के बारे में नहीं कह रहा हूं, अभी मैं अल्फा एंगल किससे कह रहा हूं? परपेंडिकुलर से. ये परपेंडिकुलर है. दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा. विच लाइन? द परपेंडिकुलर लाइन, नॉट द लाइन ऑफ विच द इक्वेशन आई वांटेड. उस लाइन का इक्वेशन की बात नहीं, उस लाइन की बात नहीं कर रहा हूं जिसका मुझे इक्वेशन चाहिए. वो तो है ए बी लाइन. उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे दिया सर ने कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन OP इज गिवन बाय P, एंड OP द परपेंडिकुलर मेकिंग एंगल अल्फा विथ x एक्सिस. आई एम सॉरी माय डियर चिल्ड्रन, मैंने इसको मिटाया नहीं. अब देखिए, I want to say that in triangle OPA, in triangle OPA, what is cos alpha? ध्यान से देखना, एकदम ब्लाइंडली नहीं बोल देना. In triangle OPA, cos alpha is this one base और this one base. देखना, फिर से ध्यान देना. OPA ट्रायंगल में बेस क्या है भाई? बेस क्या है? दिस इज 90 डिग्री. So this will certainly not be base of that triangle. This will be hypotenuse. Then I should say cos alpha equal to P upon, yes, P upon, P upon OA. P upon OA. और अगर हम सुविधा के लिए आपको पिछले क्वेश्चन की तरह से इसको A मान लें और इसको B मान लें, तो आप कहेंगे सर बेकार में, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं. इस ए बी लाइन का इक्वेशन तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. लेकिन मेरे बच्चों ए और बी नहीं दिया गया. आई हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल बी. अब मैंने लिया, अपने मन से लिया है. उसने तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई आप फाइंड आउट करिए इक्वेशन लाइन का जिसके लिए केवल आपको इतना ही दिया गया है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब साफ है, डिस्टेंस बोल रहा हूं लाइन का पॉइंट से. तो आप नहीं कह सकते कि आप साहब परपेंडिकुलर अपने पास से जोड़ रहे हैं. नहीं, OP इज स्मॉल p. और हमने क्या कर दिया, ये A और ये दे दिया. अब cos अल्फा ये ट्रायंगल लिया, OPA में आपने देखा P अपॉन OA, राइट? P upon OA. And what is OA? What is OA? आप जरा सा यहां पर देखिए. हाँ, yes my dear, that is cos alpha is, अब ठीक से समझिए, कहीं पर कोई कुछ कर ही नहीं मैं रहा हूं. cos alpha is base upon A, that is P upon A, small a. अच्छा, OA को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या आप परमिशन देंगे? A को तो है. आप आइए, चलिए यहां पर इन ट्रायंगल OPB. अभी मत परेशान होइए, जरा हम और चल रहे हैं. इन ट्रायंगल OPB, यहां पर बेटा OPB, what will be this? This is 90 minus alpha. This is 90 minus alpha. This is alpha. So this is 90 minus alpha. So what will be here? Cos 90 minus alpha equal to P upon B. पहले ये दोनों देख लो. दोनों ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात किया हूं.
ये देखिए यहां पर P अपॉन ए, यहां पर P अपॉन बी, लेकिन ये एंगल कॉस अल्फा है, उस ट्रायंगल में वो एंगल 90 माइनस अल्फा है। एंड देयरफॉर, जरा और क्लियरली लिख दूं, दिस इज ओ ए, दिस इज ए, सो ए कॉस अल्फा इक्वल टू P एंड ऑल्सो B, लिख दूं क्या, परमिशन देंगे क्या कि B cos 90 माइनस अल्फा, चलो साइन अल्फा मेरा मन था लेकिन चलिए चलेगा, cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू B, देयरफॉर हाँ P इक्वल टू A cos अल्फा एंड हियर P of course, and here P equal to B sin alpha. Then what? Yes, A equal to P upon cos alpha, B equal to P upon sin alpha. हो गया, बस बस बस, अब नहीं, अब ज्यादा नहीं घबराना है, अब ज्यादा इस लाइन के बारे में नहीं परेशान करूंगा। मैं फिर से अभी पूरा का पूरा ओरल में बताऊंगा, क्योंकि यहां से हटूंगा तो वहां जरा सेंटर में आ जाऊंगा। मैंने ये बताया, क्वेश्चन ये था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी टू व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन इज P and the perpendicular is making angle alpha with x axis. I have taken purposely the coordinates of P as xy. Why did I have? Because xy, the variable point. Obviously, हमने अपनी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन पाने के लिए मैंने अपने मन से ले लिया A, मेरी अपनी दादागिरी नहीं, अपनी मर्जी नहीं, ले लिया भाई, ले लिया A और B। आप कहेंगे इसको हटाना पड़ेगा आपको, A और B आपने किया है, क्वेश्चन में न केवल अल्फा दिया है, इसलिए आपको तो हटाना ही पड़ेगा। हटा दूंगा, पहले तो देख लूं। तो मैंने कर दिया, एक OPA ट्रायंगल में आपको मिला A इक्वल टू P अपॉन कॉस अल्फा, दूसरे वाले ट्रायंगल में जब 90 माइनस अल्फा करके किया तो साइन अल्फा बना और B इक्वल टू P साइन अल्फा। अब मैंने याद करवाया, अरे यार इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई भी लाइन जो हो ए बी एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन दैट इज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। अभी अभी बताया कि कोई भी लाइन ए बी हो जो इंटरसेप्ट ए और बी बनाए, हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर अभी तो आपने समझाया x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी, लेकिन आप अड़ंगे डाल रहे हैं, आप समझा रहे हैं नहीं सर यू शुड नॉट हैव टेकन ए एंड बी, व्हाई डिड यू टेक? बाबा आई एम नॉट गोइंग टू टेक ए एंड बी, ए और बी को हटा दे रहे हैं, हटाओ, चलो क्या करोगे? ए इज व्हाट? पी अपॉन कॉस अल्फा एंड बी इज व्हाट? हाँ यस, पी अपॉन साइन अल्फा। मैंने पुटअप किया और तब आ गया एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी प्लस y sin alpha upon p, ओके, इक्वल टू 1। 1 है, साफ नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 1। मैं आपको बहुत ही लिंक अच्छा भेजूंगा, इसमें संभवतः सारी बातें आएंगी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी रिटेन, द फाइनल इक्वेशन कैन बी रिटेन x cos अल्फा प्लस y sin alpha equal to P. This is the equation. This is the equation. So I take turn and come here with my purpose that x upon a plus y upon b equal to 1. I write here x upon a plus y upon b equal to 1. सेकेंड क्या लिया? उसके पहले लिया था, सॉरी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
and third लिया here x cos alpha plus y sin alpha equal to p। वो जो बोर्ड है, जरा फर्स्ट टाइम मेरी हैबिट आ रही है तो स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं तो कहीं मुझे डर लग रहा है सर्कल ना बन जाए। एनीवे आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों कि व्हाट इज द लाइन। फिर से आपसे रिवाइव करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? यस, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपका क्या मतलब था? यस, हाँ, ओके, अच्छा ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट c ऑन x एक्सिस। हाँ हाँ बाबा, मैं जान रहा हूं आप तुरंत मुंह बना रहे हैं। विच मेक्स इंटरसेप्ट c ऑन नॉट x एक्सिस बट c ऑन y। पूरा इससे दोस्ती कर लो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which makes intercept C, the tukda, the antakhand, the intercept on y axis and angle alpha with x axis in positive direction where m is called tan alpha। फिर से intercept C x axis पर? No, intercept C on y axis। Angle alpha is made with y axis? No sir, angle alpha is made with x axis. In negative direction? No, in positive direction. Then what would be that equation? That will be y equal to mx plus c. I have written in short form n in place of tan alpha. So y, फिर से मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, y equal to mx plus c is the equation of the line which makes intercept C on y axis and which makes angle alpha with x axis in positive direction। ज्यादा नहीं, अब समझने की बात है। सेकेंड इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इसे दोस्ती करिए और कहिए कि भाई तू है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 यों बनी है कि उस लाइन का इंटरसेप्ट a ऑन x एक्सिस एंड b ऑन y एक्सिस, एंड सो इट्स इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नाउ द थर्ड इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये किसका इक्वेशन है? ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin to that line is P, and that line makes angle alpha with x axis। क्यों भाई, क्या बात है? some of the boys and some girls are looking that they are not happy. What may be the reason? I know you are not going to accept alpha, the angle made by that line with x axis, right? मैंने पर्पजली कहा कि देखें आपका चेहरा इससे बिगड़ रहा है कि नहीं। तो दिस अल्फा, ये जो अल्फा है, मेड बाय नॉट लाइन बट इट इज मेड बाय दैट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन विथ x axis। So x cos alpha plus y sin alpha equal to p, that is the equation of the line। मैं आपको कहीं भी छका सकता हूं। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो मैं अपने ही जैसा कपड़ा वगैरह पहनवा करके किसी आदमी को आ जाऊंगा, आप गुड मॉर्निंग कह करके यू विल स्टैंड। इसलिए हमें ठीक से पहचानिए, आप हमें जानिए कि ही इज द मैथमेटिक्स सर, ही विल बी टीचिंग अस द मैथमेटिक्स। देन व्हाई शुड बी दैट वे कंफ्यूज्ड? x cos alpha plus y sin alpha equal to p. What does it mean? The length of perpendicular from origin to that line is p, and the line, na baba na, and the perpendicular makes angle alpha with x axis. What is y equal to mx plus c? That is the equation of the line which makes intercept c on x axis. No sir, it makes intercept c on y axis, and
that line makes angle alpha with x axis in positive direction. बेचारा x upon a plus y upon b equal to 1, ये तो बहुत सिंपल बात है. x upon a plus y upon b साफ कर रहा है. x के नीचे है तो x इंटरसेप्ट, y के नीचे है तो y इंटरसेप्ट, और जहाँ पर लाइन इसमें मिल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से याद दिला दूँ मैं. यहाँ पर जैसे ये है लाइन और यहाँ पर है, पता नहीं ये पूरा फिगर दिखेगा कि नहीं, O A B ये पॉइंट होगा A0 और ये पॉइंट होगा 0B, और M इक्वल टू ये जान रहे हैं. और यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन है अल्फा, ये लाइन है अल्फा, और ये लेंथ है परपेंडिकुलर OXY, और ये पॉइंट था XY. यहाँ पर भी एक पॉइंट मैंने लिया था, ऐसे कर दिया था P, और ये पॉइंट है XY. और फिर वहाँ कहाँ बनाने जाऊँ, बट इट इज़ ईजियर टू मेक इट हियर ऑन दिस ग्रीन बोर्ड, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग दैट. फिर से एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा आपको समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा पिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मेरे मन में है y इक्वल टू mx प्लस सी. मैं कहीं अगर गलत बोलूँ तो यू रेज योर हैंड कि नो सर यू आर रॉन्ग, तो मुझे बोलने दीजिए पहले. y इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes intercept C on x axis. Oh no, right your hand raised. Y equal to mx plus c is the equation of the line which makes intercept C on y axis, and the line makes angle alpha with x axis in positive direction. X upon a plus y upon b equal to 1 is the equation of the line which makes intercepts A on x axis and B on y axis, and x cos alpha plus y sin alpha equal to P is the equation of the line to which the length of perpendicular from origin is P, and that perpendicular makes angle alpha with x axis. Now I'll come to your questions. मैं कहीं कहीं झंझट करूंगा और आपको देखना है कि आप जान रहे हैं कि नहीं. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पोर्शन. आप आइए. हाँ, सेम पोर्शन सर. हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाइए. नहीं, कम ऑन. हाँ, और नीचे आइए. आप आइए ना. हाँ, अच्छा, wait. हाँ, my dear children, what would be the slope of x axis? Slope of x axis will be 0 डिग्री, क्योंकि x axis खुद x axis से 0 डिग्री बना रही है. सो इसलिए मैं कह दूं कि slope of x axis is 0 डिग्री. No, then what should I say? That is tan 0 then 0, right? So x axis making angle, x axis is 0 degree, so it was tan 0. Fortunately tan 0 is 0, and therefore 0 is the slope of x axis. What would be the slope of y axis? What would be the slope of y axis? Yes, y axis is perpendicular to x axis, so making angle what? Making angle what? 90 degree. So m will be tan theta, yani tan 90, that is infinity, that is not defined. One thing more, if two lines are parallel, तो दोनों के slopes equal होंगे ना. अगर two lines are parallel, then the slopes will be same, then m1 equal to m2. And by the way, if the two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1. मैं समझाऊंगा, अभी आऊंगा तो इसमें आऊंगा. नेक्स्ट प्लीज. Here two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to
-1. Here it is made here in the figure. I don't want to make, but I will make it out by some other way also. Yes. So next. Now I would like to find, bas. I would like to find the equation of the line. ये भी दिखेगा ना, ये दिखेगा ना. I would like to find the equation of the line. No, not equation of the line. अभी छोड़ के अभी आगे बढ़ने जाऊंगा. Yes, to find the equation of the line passing through first 1 point, second 2 points, x1, y1 and x2, y2 and here x1, y1. मेरा पर्पज क्या है बच्चों कि मैं एक लाइन का इक्वेशन चाह रहा हूं जो x1 y1 से पास हो, केवल x1 y1 से 1 point, and also we want to find the equation of the line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. तो जरा देखूं तो कैसे जम रहा है. हाँ, मैं यहां से कह रहा हूं लेट the equation of the line be y equal to mx plus c. हमने मान लिया, कुछ भी मानना था, हमारी मर्जी है, हमारी अपनी खुशी है. मैंने मान लिया कि y equal to mx plus c, लेकिन आपकी खुशी नहीं होगी. y equal to mx plus c जस्ट बोलने से आप नहीं मानना है. कैसे आप मान लिए? अच्छा बाबा क्यों नहीं, क्यों, क्या बुराई है? आप कहेंगे here c is unknown, here m is unknown, how could you find? Okay बाबा, I am just taking it y equal to mx plus c. मैं देख रहा हूं कि कैसे जमेगी बात. This line given passes x1 y1, तो क्या होगा? x1 y1 से वो सेटिस्फाई होगा. तो देख रहा हूं, सेटिस्फाई कराइए. सो y1 इक्वल टू mx1 प्लस c. इसको नंबर 1 डाल दे रहा हूं, इसको नंबर 2. देखिए, हमने चाहा to find the equation of the line passing through 1 point and 2 points. 1 point is x1 y1. हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि let the equation of that line is y equal to mx plus c. So the line given passes x1 y1, so उसे सेटिस्फाई होगा, इसलिए x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 है और लिख दिया, तो ये हो गया. इसको नंबर 1 दे दिया. नंबर 2, अगर मैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 माइनस 2, यू आर गेटिंग y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. c कैंसिल्ड. सो ये भी हमको याद रखना है बेटा. ये भी कभी मैं पूछूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 4, अब तुरंत कह देना सर y इक्वल टू m, y इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू mx माइनस 3. यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम देने वाला ये इक्वेशन. 1 पॉइंट दूंगा, आप तुरंत कहिएगा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1. लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, इसको 2 पॉइंट से जाने वाला बताओ भाई. अच्छा, एक आप कहेंगे कि ये तो इनकम्प्लीट है, m cannot be noted, m is unknown, so this equation and answer is incomplete. Right, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि y माइनस y1. लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा रोक लो, आप लोग जरा पेशेंस रखो
और एक और आ रहा हूं, अगर मैं सेकेंड पार्ट चाहूं, ये तो 1 पॉइंट हो गया, और अगर 2 पॉइंट से वही लाइन ले जाऊं तो आप कहेंगे कि वही जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड पॉइंट से भी अगर जाए, इफ passes x2 y2 then y2 equal to mx2 plus c। फोर्थ नाम ले लो, हमने आपके पसंद का न सोचते हुए हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन ले लिया y इक्वल टू mx प्लस सी, उसको x1 y1 से ले गया तो सेटिस्फाई कराया, तो यहां आ गया y1 इक्वल टू mx1 प्लस सी। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एक रिजल्ट आया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब मैं मेरे बच्चे, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि यहां पर मैं इस सेकंड और फोर्थ से फ्रॉम, ये मैंने वहां पर डिराइव नहीं किया है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं। इस सेकंड और फोर्थ से जब मैं ले रहा हूं, यानी 4 माइनस सेकेंड, आपको ऐसे ताकि आसान हो जाएगा, 4 माइनस सेकेंड, तो आपको मिलेगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1। ये मिल गया आपको, 2 पॉइंट्स भी मिटा दिया क्योंकि उसका मतलब नहीं है हमारे पास। अब ये देगा हमको m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे काम की चीज रहेगी। इसको मैं मान ले रहा हूं 5। अब फ्रॉम थर्ड एंड 5, फ्रॉम थर्ड एंड 5 यू पुट अप देयर, यू पुट अप देयर। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जो हम बीच में आए हैं, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड हियर इन माय डिस्प्ले। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्या किया मैंने, जो यहां पर नहीं लिखा, जस्ट आई वॉन्टेड कि भाई सबको लोग कहते हैं बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू मेक इट, आई हैव मेड इट क्लियर। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी y इक्वल टू mx प्लस सी। इफ इट पासेस थ्रू x1 y1, I have written, that is I have written that I got the third one, y minus y1 equal to mx minus x1, or if that passes through x2 y2, that is y2 equal to mx2 plus c, और इनको ऑपरेट करके ultimately I find m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, and this we put in third, we get here, no not written, we get y minus y1, शायद आगे नहीं दिया है इसमें, आगे हम इसको मिटा करके पहले इसको कंप्लीट कर ही दे रहे हैं। उसके बाद से मैं फिर से थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैंने मोटी मोटी बात बताया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 is y minus y1 equal to m x minus x1। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर m इनकम्प्लीट है, रहने दीजिए, m को क्वेश्चन में वो बताएगा, भाई m में भी दे देंगे ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन passing through x1 y1 and x2 y2, that is m equal to y2 minus y1 upon
x2 माइनस x1. और थर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 equal to y minus y1 equal to y minus y1, that is m y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. आपको याद होगा ये थर्ड इक्वेशन था, इसलिए मैं अब इनको बार बार आपको कहूंगा यस लेट मी नो. और अब आपको हम एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे. इट्स टू हॉट एक्चुअली, यहाँ एसी डालना ही पड़ेगा. वहाँ करेंगे, वो वही करेंगे, आज ही मैं मैनेज कर रहा हूँ. हाँ चलिए. Okay, boys and girls, don't be disturbed. Yes, so slope of the line passing through 2 points, that is x1 y1 x2 y2, you have to remember it, y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is the equation of the line if it is given only one point? Only one point, you will say y minus y1 equal to m x minus x1. And what is the equation of the line? It passes through 2 points, y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ये 3 रिजल्ट दिया और 3 पहले दिया. इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप फॉर्म y equal to mx plus c, इंटरसेप्ट फॉर्म x upon a plus y upon b equal to 1, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. मैंने कोशिश किया है समझाने को, मैं फिर समझा सकता हूं, बोर्ड पर आपको मिला हुआ होगा जो आप इसको देखेंगे. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस. और ये भी बताया कि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू m2, मैं आगे और भी बताऊंगा, m1 इक्वल टू m2, और दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. यस, नाउ चलो तो भगाते जा रहे हो. और हाँ, एक मिनट और नीचे लाइए, और नीचे लाइए. हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट है. हाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस -2/3, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, parallel to distance from x-axis and parallel to x. Parallel to x-axis means y equal to, parallel to y-axis means x equal to distance. तो यहाँ पर हमने कहा -2/3. जो equation of the straight line is refer to the article C, that is y equal to the distance. Y equal to distance. Next, second, हाँ, second and third do it by yourself. हाँ, इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं. बाय यूजिंग ये थोड़ा बस बाय यूजिंग स्लोप फॉर्म प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स 4, 8, 5, 12, 9, 28 आर कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में. तो अगर मान लो 3 पॉइंट्स का दिया हुआ, ए पॉइंट हियर, बी पॉइंट हियर, सी पॉइंट हियर, तो आई वांटेड टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है. तो मैं क्या करूंगा कि मैं ए बी का स्लोप निकाल लूंगा. स्लोप कैसे निकालूंगा? मुझे तो फॉर्मूला बताया नहीं है. बताया हूं. वो क्या बताया हूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और फिर बी सी जो कॉमन पॉइंट है, ए बी और ए सी नहीं,
ए बी एंड बी सी, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 4। तो नेक्स्ट सर जरा जाइएगा, यहाँ 4, नेक्स्ट यहाँ भी 4, यानी m1 इक्वल टू m2। लेकिन m1 इक्वल टू m2 से सर तो ए बी और बी सी पैरेलल होगा, ये कोलिनियर कैसे होगा? नहीं बेटा, ए बी और बी सी तो पैरेलल होगा, लेकिन बी इज द कॉमन पॉइंट, B is the common point. Look here. Since B is common to AB and BC, therefore ABC are collinear. आपको याद है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ABC के कोलिनियरिटी में आपने क्या किया होगा? AB की डिस्टेंस फॉर्मूला तो कतई नहीं भूलेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। BC की डिस्टेंस उसी फार्मूले से, और AC की डिस्टेंस भी निकाले होंगे उसी फार्मूले से, और तब कहेंगे कि AB प्लस BC इक्वल टू AC। एक वो भी मेथड है, यहाँ पर ये भी मेथड है स्लोप इक्वल करना, लेकिन दोनों के लिए AB और BC B कॉमन लिया हमने। नेक्स्ट सर, A, B, C here given are the vertices of right angle triangle, and D are the A, B, C and D are the vertices of a rectangle. A is here. तमाम questions हैं. Prove that these are the vertices of a right angle triangle. बेटा इसके लिए पहले जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, एक तीनों के डिस्टेंस निकालिए, ए बी स्क्वायर की, बी सी स्क्वायर की, ए सी स्क्वायर की, और उसमें देखिए एक डिस्टेंस जो है वो उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं, एक तरीका है। नहीं तो ए बी का आप स्लोप निकालिए, कौन फार्मूला ए बी का स्लोप का? यस माय चाइल्ड, ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिमिलरली BC, सिमिलरली CA, सिमिलरली ऑल। और जहां पर आपको दिखा कि दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, सो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट प्लीज। ओके, गॉट डन ऑलरेडी। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, लुक हियर, इफ द 3 पॉइंट्स हियर, कैपिटल A is H0, कैपिटल P is AB and कैपिटल B is 0 के lies on a line, show that A upon H plus H upon K equal to 1। ये तो कुछ बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। एक लाइन में करेंगे, क्या करेंगे? AP का स्लोप और PB का स्लोप इक्वल कर देंगे, ये रिजल्ट आएगा। यहाँ किया हुआ दिखलाया भी गया है। हाँ, ये देखिए, लाइज ऑन ए लाइन, सो M1 इक्वल टू M2 इक्वल कर दिया, एंड देयरफॉर द रिलेशन। हाँ, राइट। नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द, ओहो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। यानी एक लाइन है जो 3 - 1 और 4 - 2 को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, ये कौन सी बात है? जो लाइन है जिसका कि वो एंगल एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, हम उसका स्लोप निकाल लेंगे, राइट? और स्लोप निकाल करके टेंजेंट थीटा वो होगा, लेकिन हमें टेंजेंट थीटा, स्लोप कह रहा है, क्या कह रहा है? एंगल पूछ रहा है। तो एंगल पूछ रहा है तो हमें tan थीटा मिलेगा, तो हमें थीटा निकालना है। जरा देखिए कैसे कर रहे हैं। यहां पर m निकाल रहे हैं, वो tan m यानी tan थीटा -1 आया, tan थीटा इक्वल टू tan 135। इस कितना सिंपल जी। उन्होंने पूछा था, शायद ये सोचे होंगे कि बच्चों को ये नहीं पता चलेगा। अरे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ए लाइन विथ एक्स एक्सिस? यू शुड नो सर। विथ एक्स एक्सिस जो एंगल होगा दैट विल बी टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, यानी स्लोप। तो इसलिए हमने निकाला। अब एक्सरसाइज दिया हुआ है, यू विल डू एट होम। ऊपर ऊपर ऊपर,
और नीचे अब उसके बाद बहुत कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनके आंसर्स हैं. दिस यू विल बी गेटिंग, ऑल दैट यू विल बी गेटिंग. हियर लुक हियर माय चिल्ड्रन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने वहां पर बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस सी. आई हैव मेड यू. यस, नेक्स्ट. हाँ, ये सब मैंने पूरा बता दिया. आई शैल. एंड सेकेंड, हाँ, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अगर मान लीजिए कि ओरिजिन, एक और ये बता रहे हैं जो हम आगे आते ही वो आगे आएंगे, छोड़िए. सॉल्व एग्जाम्पल्स. हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल. अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं. हमारे बच्चों को इतना सीधा समझ लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान, बहुत कठिन सी बात पूछ रहे हैं. जरा देखना तो मेरे बच्चों. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. मैं यहां पर बहुत अलर्ट हूं. विच मेक्स एंगल 30 डिग्री, और यहीं पर देखा, अरे रे 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 रे, एक्स एक्सिस से कह रहा है, वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस कह रहा है. चलो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं. एंड इट्स of intercept 4 with negative direction of y axis. तो c +4 नहीं है, c क्या है? -4. और m क्या है? m tan 30. क्यों tan 30? क्योंकि यह मेक्स एंगल विथ x. अगर यहां पर हमको घुमाना चाहता ना, वो y एक्सिस से बोल देता और आप परेशान होते. लेकिन क्यों परेशान होते? आप टोल्ड यू यस्टरडे. चलिए नेक्स्ट देखता हूं ना. हाँ, ओके, नेक्स्ट. द आंसर इज देयर. कोई बात नहीं है. हाँ, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन. सेकंड क्वेश्चन पर आ गया. कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -2. कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? -2. तो c इज -2. ये तो लिख देंगे हमारे बच्चे. फ्रॉम, अरे यहां फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y से कट रहा है. ये कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए c वी शैल पुट -2. क्लियर हो रहा है ना? ये वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -2 फ्रॉम. अलर्ट हूं, मेरे कान खड़े हैं. -2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y. वो कह सकता था एक्सिस ऑफ x, तो हमारे बच्चे चिल्ला उठते, नहीं नहीं y से होता. अरे उसकी मर्जी है, आप बताइए y से कितना इंटरसेप्ट है. तो चलिए, ये तो बहुत आसान किया. एंड एन एंगल अल्फा या थीटा tan इनवर्स 3/4. tan इनवर्स 3/4. माय डियर, tan इनवर्स, जिस थीटा इज tan इनवर्स 3/4. इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा इज 3/4. यानी m उसका, ये लिखा भी हुआ है, देखो हियर c इक्वल टू -2 एंड थीटा इज tan इनवर्स 3/4. देयरफॉर tan थीटा 3/4 and so that is m. and so equation of the line, m पता चल गया, c पता चल गया. वो फर्स्ट मैंने जो इक्वेशन बताया था, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, एंड हियर वी आर गेटिंग. चलिए एक और एग्जांपल देख रहा हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम y एक्सिस. अभी चिंता नहीं है, -1 फ्रॉम y एक्सिस, यानी c विल बी -1 एंड बीइंग equally inclined to the axis. ओहो, equally inclined. so मेरे बच्चों, मैं इसको मिटा करके या उधर आ जाऊं, तो सॉरी, मैं आई एम कमिंग दिस साइड. हाँ, तो जरा क्वेश्चन देखिए. वो कह रहा है कि वहां पर कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट c एज -1 c इक्वल टू दे रहा है c इक्वल टू -1. अल्फा नहीं दे रहा है. अल्फा इज व्हाट? क्या करूं मैं यहां से? बस इतना बता दे रहा है, इक्वली इंक्लाइंड. तो इक्वली इंक्लाइंड कैसे आएंगे? आइए चलिए बनाते हैं जरा फिगर. कुछ मैं भी समझता हूं क्या ये हमारे बच्चों को तंग कर रहा है. ये देखो, ये यहां से यहां पर ये है -1,
ये है y, ये है x, ये है लाइन AB। तो मुझे -1 से तो चिंता नहीं, C इज द -1। लेकिन एंगल क्या करूं मैं? व्हाट टू डू विथ एंगल? यानी इसमें इक्वली इंक्लाइन। तो देखो इक्वली इंक्लाइन में हमें 2 लाइन मिल रही बेटा, ये देखो। अरे भाई तू फिसल नहीं। हाँ, ये C और D, AB और CD 2 हो सकता है। तो C is -1, C is -1, please try to understand, but the line is equally inclined with x axis, यानी भाई x axis और y axis से ये equally inclined हो गया। तो ये एंगल क्या हो सकता है? 45 डिग्री। इक्वली x से और y से जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी वो 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन तो आंसर हो गया कि सर आप लिख लीजिए थीटा इज 45 डिग्री, m इज tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1, एंड सो y इक्वल टू mx प्लस c में m है 1 और c है -1, सो इक्वेशन इज y इक्वल टू -x एंड -1। लेकिन ये तो दो आंसर दे रहा है, क्यों दे रहा होगा ये दो आंसर? वो ठीक ही दे रहा। द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, तो ये क्या लाइन, कोई बेचारे को आप मार डालेंगे क्या इस लाइन को? CD भी एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है और y एक्सिस से C पर है। तो इसका कितना एंगल है? देखो 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 कितना एंगल है x एक्सिस से 135 डिग्री, 135 डिग्री। Therefore C is here, theta is 45 degree or 135 degree. So m equal to tan 45, m equal to tan 135 degree, that is -1. So equation is y equal to x, यानी m की जगह पर 1 रखा और c की जगह पर -1 रखा और क्लियर ही किया कि y इक्वल टू सॉरी यार, हाँ कोई बात नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c में y इक्वल टू प्लस भी होगा m और माइनस भी होगा, लेकिन c तो माइनस होगा क्योंकि दिया हुआ, एंड देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन। तो उसके बाद और आगे आएंगे। व्हाट इज द टाइम आई हैव टेकन टिल नाउ? 10:30, यानी अराउंड मोर देन 1 आवर ना, है ना? ओके, now my dear, day 3 class I will start tomorrow, but before that I will revive. I will not take more than 5 minutes for reviving. मैं आज क्या क्या बताया इसको तो बताना ही है हमको। क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या आपको समझाया? शुरू में आया तो मैंने ये बताया कि भाई find the equation of the line which makes intercept C on y axis and that line is inclined at angle alpha with x axis। और आपने देखा after some operation we found y equal to mx plus c। फिर मैंने आगे बताया second form, that was the intercept form, to find the equation of a line having intercept a on x axis, b on y axis, and that I got x upon a plus y upon b equal to 1। third form, that is नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, इसमें कान खड़े हो जाने हैं क्योंकि इसमें बराबर हमसे परेशानी होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन, नॉट द लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस and the length of perpendicular is p, so its equation I have got after operation x cos alpha plus y sin alpha equal to p। लेकिन दिमाग रखना ये अल्फा उस लाइन का एंगल नहीं है, ये अल्फा उस परपेंडिकुलर का है। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि भाई जब दो लाइंस पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और फिर आया इक्वेशन फाइंडिंग while it is passing through x1 y1
मैनी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा इतना घुमाऊंगा आप लोगों को, इतना ट्रिकी बना दूंगा कि परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप दिमाग में रखिए कि कभी भी कोई एक पॉइंट हो तो आप राजा हैं, कम से कम आधा काम तो कर लिए। क्या काम कर लिए? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m के लिए मैं कुछ भी घुमा दूंगा। तो आपका काम है कि m को आप मत घूमें, आप m को पता लगाएं कि m तो टेंजेंट अल्फा होता है, x एक्सिस से जो अल्फा बनता है। देन स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दैट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और थर्ड मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, एंड दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू yes right you are y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस पर हमने 4 5 6 7 क्वेश्चंस किया, और कल जब आऊँगा एक क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उसमें आपको हम टेस्ट जरूर करेंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -1 ऑन y एक्सिस। तो इतना किया तो ठीक है, हमारे बच्चे c इक्वल टू -1, और जब कहा इक्वली इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो अब हमारे बच्चे कह देते थीटा इज 45 डिग्री एंड m इक्वल टू tan 45 यानी 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1। लेकिन वो आधे नंबर ही मिलते। क्यों? क्योंकि उसने अब जरूर बोला, लेकिन एक और लाइन थी CD जो x एक्सिस और उससे y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन थी, लेकिन उस समय एंगल उधर भी 45 डिग्री है, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, या यूं बोलते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, 135 डिग्री, एंड देयरफॉर वी गॉट y इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1, एंड दैट वे टुडेज क्लास is over. I got it more. I'll revive it in day 3 class and start ahead of it. Of course, x upon a plus y upon b and x cos alpha equal to 1, x cos alpha plus y sin alpha equal to p। इसके बारे में नहीं, और एक और फॉर्म है, इसको कल करेंगे, और क्वेश्चन तो अब आपको घुमाऊंगा। तो राइट माय चिल्ड्रन, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। ओके।